Jinendra, Jai Swaminarayan, especially to the organizer of this webinar today, Shri Raviji Jain and his team, and the principal speaker on the topic today, Shri Motilal Ji Oswal. जैसे मोतीलाल जी ने बताया कि हम अच्छे मित्र हैं, कई बार साथ रहे हैं, अच्छी एक्सचेंजेस हुई हैं और definitely, as it was put forward by Ravi ji, that Motilal ji has changed the landscape of financial services in the country, in the continent, and in the world. So, thank you, Motilal ji, for delivering such an insightful, knowledgeable talk and inspiration and advice to people of all strata. Well, coming to the topic that has been shared with me by Ravi ji, it's psychology and behavior, the role of it in business life and personal life. एक बहुत अच्छी कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा. On such a fine Sunday morning, a father was reading newspaper, the Sunday edition of it, and he was fully engrossed in it. At that time, his small little son, he approached his father and was just pull his trousers or put his hand and pull the newspapers and said, "Daddy, Daddy, आपने वादा किया था कि मैं मेरे लिए आप बैट लेके आएंगे, लेकिन आप तो पूरा पूरा हफ्ता चला गया, आप मेरे लिए बैट नहीं लाए." तो डैडी ने कहा कि डेफिनेटली टुमारो मंडे आई विल गेट अ न्यू बैट फॉर यू. लड़के ने कहा, डैडी आप तो ये बात कर रहे हो पिछले 5 दिन से कि कल लेके आऊंगा, लेकिन आप लेके नहीं आ रहे हैं. तो ऐसे ही कुछ बहस चल रही थी, उसके बीच पिताजी को लगा कि ये लड़का आज उसको छोड़ने वाला नहीं है. तो पिताजी ने यूं कुछ देख रहे थे आजू बाजू की, इफ आई कैन एंगेज दिस बॉय फॉर अ फ्यू a couple of hours at least, then I can be peaceful with my Sunday edition and my cup of tea. तो उनके बाजू में एक विश्व का नक्शा पड़ा था, वर्ल्ड मैप. This father, he picked up that world map that was of the A4 size and he tore it into small pieces. और ये बच्चे को दिया. The boy was hardly 7 or 8. And he told the little boy that if you can get the whole world map together, I'll give you a wonderful bet of your choice of the prize that you want right away. क्योंकि ये पिताजी जानते थे कि ये इतना छोटा लड़का है, 7-8 साल का है, उसने कभी वर्ल्ड मैप देखा नहीं है, वो कैसे कर पाएगा? Difficult for him because he has not studied geography, he has not studied uh, landscapes. पिताजी के आश्चर्य के बीच वो लड़का लेके तो गया, लेकिन 10 मिनट में वापस आया, सेलोटेप अच्छी तरह से लगा के, एंड द होल वर्ल्ड मैप, जो कंट्री जहां थी, इंडिया, चाइना, जापान, यूके, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका. And the father was surprised. And he said to the little boy, "How could you do it?" And the condition was this, that you are not taking anybody's help. The little boy said, "There is nobody in the house except you and me. Mom has gone out for shopping. So, like, I didn't take anybody's help." The father was surprised that you haven't studied geography, you haven't studied landscape. How can you make this? And that too in just 10 minutes. You've never seen a world map. वो छोटा लड़का हंसने लगा. पिताजी, मैं बताऊं मैं कैसे कर पाया? पिताजी के हाथ में से ये पेपर लिया लड़के ने और उल्टा किया और बताया पिताजी को कि देखो पिताजी, ये जो वर्ल्ड मैप है उसके पीछे एक आदमी का पिक्चर था. मैंने वो व्यक्ति, वो आदमी अच्छी तरह से अरेंज कर दिया, तो आगे दुनिया भी अच्छी तरह से अरेंज. I adjusted the picture of the man and the whole world got adjusted. आज जो हमारा विषय है, रोल ऑफ साइकोलॉजी एंड बिहेवियर इन बिजनेस लाइफ एंड पर्सनल लाइफ. If the man gets adjusted well in terms of psychology and behavior, his business life and his family life, his personal life and his social life, professional life, everything gets adjusted well. Adjust the man and your world will get adjusted. Rearrange the man and your world will get rearranged. It is as simple as that. Because it is not the world who runs the man, it is the man who runs the world.
isn't it? ये क्या है? आदमी जितना ठीक होगा, दुनिया ठीक चलेगी। दुनिया आदमी नहीं चलाती, आदमी दुनिया चलाता है। तो आदमी की साइकोलॉजी और बिहेवियर जिसकी बात अभी हम सोच रहे हैं, वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। The better the thought process, the better the psychology of the person, the better the behaviors of the person, the better he'll be able to manage his business life and personal life. That is a reality. That is a proven norm. The first important is your personal psychology and personal behaviors, your personal thought processes, your personal behaviors. देखो हम क्या मानते हैं, मैं बुद्धिशाली हूँ, मेरा अनुभव अच्छा है, मेरी कार्य शक्ति अद्भुत है, मेरा संबंध समाज में बेहतरीन है। इसके सेंटर में एक आई आ जाता है। Our psychology and behavior are driven by ego. I, हमारा आई बहुत इन्फ्लेटेड होता है। Keep the size of our eye very big. सालों पहले शिकागो में एक टेलीफोन एक्सचेंज में प्रयोग हुआ कि कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसकी वजह से वे लोग कौन सा शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है वो तय कर सके। They designed this special software. So the common words that we speak is like good morning or thank you or how are you, I. तो ये सभी कुछ शब्द जितने बार बोले जाते थे पूरे कम्युनिकेशंस में in the whole city of Chicago, the software would bifurcate them and number them out. After a couple of weeks, when they got the printout, the result sheet, they got the printout and the result sheet, they found out that the most spoken word was I. The most spoken word was I. I did this. I was there, so it happened. I made it happen. I was there in the meeting. I gave this idea. It was because of I being there, everything went well. ये सभी कुछ बातें हैं. I just want to ask a question in between. Am I properly audible? Just raise your hand if I'm properly audible. Yes, sir, you are properly audible. Yes, Swamiji, you are properly audible. But because I see a few messages on the screen where people are writing that not properly audible or we are not getting the voice. There are a few messages on the screen. No, voice is coming properly. So, okay, yeah. just check with your technical team because there are a few messages on the screen written by delegates. Okay, Swamiji. Fine. तो बात ये थी कि सबसे ज्यादा शब्द प्रयोग जो हुआ था वो था I. People used to say I. So we have this inflated I. The psychology and the behavior in personal lives is that of an inflated I. And when the I is big, the person becomes small. Maybe your I can inflate your personality, but it can deflate your character. So I कम करना, I छोटा करना, I को ज्यादा महत्व नहीं देना, वो पर्सनल साइकोलॉजी एंड बिहेवियर में बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि in your personal psychology and behavior, keep the I small because we are not even a speck of dust in the whole universe. Every third person besides you is perhaps more intelligent in some way or the other way than you. I think all of you will agree with me. Every day, about 1.5 lakh people leave this earth. That means 3 people every 2 seconds. We started our webinar at 10:30. It's about like half an hour, 30 minutes. That is 1800 seconds. 2,500 people left this earth. And perhaps the ratio is more because of the COVID deaths at the moment. What I mean to say is that our 60, 70, 80-year life is nothing as comparison to the time zones of the universe. Why to keep that I big? If you remove that psychology and behavior of an inflated I, you can work wonders. That we saw in the life of Prabhu Swami Maharaj, our Guru, whose centenary celebrations we are celebrating.
Once a saint wrote a letter to Pramukh Swami Maharaj and said, Swamiji, can you write back to me in English that I bless you? And Pramukh Swami Maharaj, with the help of the attendant saint, he wrote the sentence, I bless you. Saint, the attendant saint narrated him letter to letter, and he was like writing it. After the completion of the sentence, when the attendant saint saw the letter, Pramukh Swami Maharaj had written all the letters of the word I bless you in capitals, except the I, which was small, that is the dotted one of the second alphabet. And the saint very humbly said, Swamiji, it is a norm in the English grammar that after the full stop, the first letter of the word is always capital. Pramukh Swami Maharaj said, with a very smile on his face, a wisdom-filled smile, that I know the first letter of the word after the full stop is always capital, but you should always keep the I small. Smaller the I, better the work. Smaller the I, better the relationships. Smaller the I, better the ideas and creations. Smaller the I, better the result. आप चेक कर लेना, इतिहास पढ़ लेना, आपको ये जरूर महसूस होगा. Smaller the I and bigger the result. When Pramukh Swami Maharaj built the famous Swaminarayan Akshardham in New Delhi, आप सभी ने देखा होगा. Just raise your hands if you have been there. The Swaminarayan Akshardham at New Delhi, almost all of you. Pramukh Swami Maharaj ने ये अक्षरधाम 5 साल में बनाया. 110 एकड़ जमीन पे. It's an ideal expression of Indian culture, Indian tradition, Indian way of living. उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज को कहीं महानुभव मिलने के लिए आते थे, अक्षरधाम दर्शन के लिए आते थे, फिर बैठते थे स्वामी जी के साथ, कुछ चर्चा होती, बातचीत होती थी, एक्सचेंजेस होते थे. सभी कोई प्रमुख स्वामी महाराज के साथ बातचीत में अक्षरधाम की बात दोहराते हुए बात करते थे कि क्या भव्य बनाया है, अति अद्भुत है, अति दिव्य है, ऐसे शब्द प्रयोग करते थे. In the midst of that, they would tell Pramukh Swami Maharaj that you have done a great job upon this earth, and this is an extraordinary creation by you. Pramukh Swami Maharaj, we have seen this with our own eyes, with folded hands, would always say that, see, we have done nothing. It is with the grace of God and the blessings of our Guru Yogi Ji Maharaj and all the saints and the volunteers. They have worked hard, and so this has happened. Now, actually, Pramukh Swami Maharaj was the creator of it, yet he believed that I did not do it. तो हम लोग क्या मानते हैं कि मैंने ये किया. जब ये मानते हैं, अहम आता है. अब जब अहम आ जाता है, तब कई प्रकार की तकलीफ शुरू होती है. प्रमुख स्वामी महाराज ये आई छोटा रखते तो क्या कार्य किया. In a span of 45 years, he created 1,300 institutes of service, hospitals, hostels, schools, colleges, community centers, sanskar kendra, sanskar dhams. 1,300 such institutes in a span of 45 years. That is every institute. That is an institute every 15th day. रवि जी और मोतीलाल जी को मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि every 15th day you want to start an office, set up an office at some place in India or abroad. You know how much it takes, isn't it? हर 15वें दिन में प्रमुख स्वामी महाराज ने एक ऐसी संस्था समाज को भेंट दी. समझ लो every 15th day he purchased the land. What he wanted to do on that was decided upon, either hospital, hostel, school, college, mandir, akshardham, whatever. Plans designed, plans passed, tenders dished out, tender passed, local government bodies with them, legally everything cleared, and construction starts. 2, 3, 5-story building. It is completed. 2, 3, 5 people needed, honorary to serve the organization, another paid staff, everything decided upon, and the institute put in the service of society. Every 15th day for 45 years, Pramukh Swami Maharaj did that. रवि जी, आपको हर 15वें दिन एक नई ऑफिस खोलनी है तो in different cities of India. बहुत टफ काम है स्वामी जी. प्रमुख स्वामी महाराज ने ये किया. आपके कोलकाता में बड़ा जोका में डायमंड हार्बर रोड पे अक्षरधाम तुल्य बहुत बड़ा कैंपस है. तो कहने की बात है कि यहां तक की ऊंचाई अगर आपको प्राप्त करनी है, यहां तक का काम अगर जीवन में करना है, यहां तक का लाभ अगर लोगों को देना है समाज में,
तो सबसे अहम आवश्यकता है कि आपका अहम कम हो, लेसर आई बिगर रिजल्ट। तो ये पर्सनल लाइफ में, ये साइकोलॉजी और बिहेवियर में ये याद रखना कि मेरे से ज्यादा बुद्धिशाली लोग मेरे आसपास हैं। आई एम नॉट इवन अ स्पैक इन द डस्ट। हाँ, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करके कुछ कमाना है, समाज को देना है, क्रिएशन करना, ये सब कुछ करना है, लेकिन कीप योर आई स्मॉल। इन योर वर्ड्स इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट, इन योर एक्सप्रेशंस इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट, in your behaviors it should not reflect. In all these three it would not reflect if basically it is not there in your psychology. So personal life में एक बहुत बड़ा, इसका लाभ क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसका लाभ ये है कि when you keep your eye very less deflated, the first advantage, अब ध्यान से सुनना, आप ये मत सोचना कि स्वामी जी आप तो संत हैं और अहम की बात करें, हम नहीं रखना चाहिए। आई एम टॉकिंग वेरी प्रोफेशनली, आई एम टॉकिंग वेरी कमर्शियली। टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज स्टीफन कॉवी जो सिखाते हैं, कैन ब्लैंचार्ड जो सिखाते हैं, एंथनी रॉबिन्स जो सिखाते हैं, ऑग मैंडिनो जो सिखाते हैं, वो आपसे अभी शेयर कर रहा हूं। द लेसर द आई, द फर्स्ट एडवांटेज, more and more people would like to come near to you and work with you. कितना बड़ा एडवांटेज है, समझ सकते हो ना? When more and more people would like to come near to you and work with you, you have a phenomenal chance of success. You get variation of intellects, you get variations in talents at your disposal for your success. Is a big advantage. दूसरा एडवांटेज, when you keep your eye less, you experience less stress. ज्यादा तनाव कब आता है? जब हमारा आई बड़ा हुआ है, यार मैंने ये अचीव नहीं किया ना, लोग मुझे किस प्रकार से देखेंगे। अरे भाई, जिस दृष्टि से देखे, आपने प्रयत्न कर लिया ना, पुरुषार्थ कर लिया ना, फिर क्यों रोते हो? फिर क्यों तनाव में आते हो? फिर क्यों घबरा गए हो? आय होता है ना तो स्ट्रेस ज्यादा आता है, क्योंकि मैंने अचीव नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, और मैंने ये परफॉर्म नहीं किया, लोग क्या सोचेंगे। बिगर द आई मोर द स्ट्रेस, लेसर द आई लेस स्ट्रेस। स्ट्रेस कम रहेगा तो फिजिकल एडवांटेज है, मेंटल एडवांटेज है, इमोशनल एडवांटेज है। राइट और रॉन्ग? थर्ड बिग एडवांटेज, स्मॉलर द आई। साइकोलॉजी में आप आई नहीं रखेंगे, God will inspire you with better thoughts and better ideas so that you produce better results at your workplace. देखना, अहम कम होगा, ये भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने वचनामृत में लिखा है, हमारे शास्त्रों की सनातन बात है कि आप में मान अहम कम होगा तो भगवान का प्रवेश, भगवान का आशीर्वाद, ये भगवान आप में प्रेरणा करेंगे कि आपको ज्यादा अच्छा आइडियाज, ज्यादा अच्छे थॉट्स आपको नेचुरली अंदर से दे विल लाइक स्प्राउट आउट। These are the three big advantages. So ये पर्सनल लाइफ की बात थी, पर्सनल लाइफ में साइकोलॉजी और बिहेवियर की बात थी। दूसरी बात है, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट शुड बी द साइकोलॉजी एंड बिहेवियर इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो हम तो ये मानते हैं प्रोफेशनल लाइफ में कि हमारी साइकोलॉजी और बिहेवियर क्या है? compete and win. Let me put everything in these two words. The basic psychology and behavior in our professional life is, I am always in a competition. I am here to compete and I need to win. तो आप दौड़ते हो दौड़ते हो दौड़ते हो, एक रैट रेस में चले जाते हो। And remember, even if you win the race, you are still a rat because you are in the rat race. Even if you win the race, you are still a rat. वो वृत्ति जाएगी नहीं। And actually when you finish the race, you are already into the second race. तो भागते फिरोगे, दौड़ते फिरोगे, कहां तक दौड़ना है? You have to put a satisfaction bar somewhere. So professional life में हमारी साइकोलॉजी और बिहेवियर ये है कि I always want to compete, I'm always in the competition and I want to win. ये साइकोलॉजी बदलनी है, ये बिहेवियर बदलना है। So in the professional life, instead of competition, go towards cooperation. स्पर्धा नहीं, सहकार।
समझे? Then you'll be able to produce better results for yourself, for your team, for the organization, for the society and for the nation. कोऑपरेशन एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला एडवांटेज ये साइकोलॉजी का, कोऑपरेशन साइकोलॉजी, कोऑपरेशन बिहेवियर एट योर वर्क प्लेस, इन योर प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आप गंभीर परिस्थिति में टिक पाएंगे। आपका टीम मेंबर कमजोर हो तो भी टिक पाएगा। अलग टीम मेंबर्स हैं, उनकी अलग अलग एक साथ आ जाएगी, एक अच्छा रिजल्ट पैदा कर पाओगे। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज of having the psychology of cooperation, having the mindset of cooperation and not competition. ये पूरा mindset बदलना है। More growth comes by cooperation than competition. competition में घर्षण आएगा, स्पर्धा आएगी, envy and jealousy आएगी। cooperation में helpful nature develop होगा, care and concern develop होगा, एक दूसरे के प्रति सुहृद भाव रहेगा, सभी का ग्रोथ होगा। This is the advantage of cooperation psychology at professional place and not the competition psychology at the professional place. अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य है, वहां रेडवुड ट्रीज हैं, बहुत बड़े होते हैं। They rise to about 200 feet, 225 feet, sometimes 250 plus feet. ऊंचे जाते हैं। The trunk of these redwood trees are so huge कि हम लोग अगर 7-8 आदमी ये एक ह्यूमन चेन बनाए, even then we cannot cover the circumference of the trunk of one redwood tree. इतना बड़ा होता है क्योंकि ऊंचा जाता है, चौड़ा भी इतना है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक रेडवुड ट्री के ट्रंक में से वहां एक रोड निकलता है, एक गाड़ी जाती है, एक गाड़ी आती है, फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री। कितना बड़ा होगा? अब जो ट्री 250 फीट तक ऊपर जाता है और उसका ट्रंक इतना चौड़ा है, उसके रूट्स कितने डीप होने चाहिए? होने चाहिए ना। आप 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाते हो, 25 स्टोरी बनाते हो, तो जब ऊपर जाता है तो इतना फाउंडेशन डीप होना चाहिए ना। द फाउंडेशन मस्ट बी मोर डीप एंड स्ट्रांग। इट्स कॉमन सेंस, इट्स सिंपल कैलकुलेशन। आश्चर्य की बात है कि इन रेडवुड ट्रीज के मूल कुछ चंद फीट ही जमीन में गहरे हैं। दे आर नॉट दैट डीप। बायोलॉजिस्ट को बहुत आश्चर्य लगा, हाउ दिस वेट इज बीइंग सर्वाइव। और कैलिफोर्निया तो सेस्मिक जोन है, थोड़ा 2, 3, 4, 5 का रिचर स्केल का अर्थक्वेक आता जाता रहता है। दे डिड अ डीप रिसर्च, और रिसर्च में क्या पता चला पता है? अब सुनने लायक बात है, शांति से सुनना। The roots of this redwood trees under the ground, they mingle with each other, they share the water and minerals with each other. ये कोऑपरेशन है। पता है क्या है? जमीन के ऊपर हम लोग जगरते हैं रिसोर्सेस के लिए, जमीन के नीचे सभी वृक्ष के मूल भी जगरते हैं पानी के लिए और रिसोर्सेस के लिए। जगरना तो चालू है सब जगह पे, लेकिन ये एक अपवाद है। रेडवुड ट्रीज इज एन एक्सेप्शन। Their roots, they mingle with each other, they don't fight for resources, they don't compete with each other, they cooperate with each other, they share and care for each other for water, minerals and other resources. तो थोड़े ही डीप हैं, लेकिन इतने ऊंचे तक गए और अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं। So my point proves here that cooperation gives you better growth than competition. हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज ये बात करते थे, और आज हमारे गुरु हरि है परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, वे हर रोज एक बार बात करते हैं संप, सुहृदभाव और एकता। We are better when we are united. We are better when we come on the common platform. We are better and we grow better when we walk with one aim in life. So the psychology of competition at your workplace and trying to win, वो psychology छोड़ के
कोऑपरेशन की साइकोलॉजी से लेट अस विन टुगेदर। कंपटीशन में साइकोलॉजी क्या है और बिहेवियर क्या है? आई वांट टू विन। एंड कोऑपरेशन साइकोलॉजी में बिहेवियर क्या होता है? लेट अस विन टुगेदर। इन दोनों में फर्क है ना? आई विल विन एंड लेट अस विन टुगेदर। दो में से अच्छा कौन है? फर्स्ट या सेकंड? जस्ट रेज योर हैंड्स। सेकंड, थैंक यू। आई वांट टू विन, ये कंपटीशन साइकोलॉजी है। लेट अस विन टुगेदर, cooperation psychology. This is the need of the hour at your workplace, professional careers. आज नेल्सन मंडेला का जन्मदिन है, 18 जुलाई। अगर कोऑपरेशन ही सीखना है तो उनके जीवन में से बेहतरीन बातें हम सीख सकते हैं। आप सभी ने नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना है, उनके बारे में कुछ पढ़ा भी होगा। 27 साल तक वे जेल में रहे बिना कोई कसूर। The regime in South Africa put him behind bars. और हम तो वहां जो जेल में नेल्सन मंडेला 27 साल तक रहे, उस जेल को हम उस जेल में प्रवेश देते हैं विजिटर्स को देखने के लिए। छोटा सा कमरा है, 6x6 का होगा। 27 साल तक वहां रहे। आदमी की साइकोलॉजी और बिहेवियर कैसे हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। 27 साल के बाद वे जब बाहर आए, उस वक्त साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे पीडब्ल्यू बोथा। बाहर आए तो पत्रकार ने उनको पूछा, now Mr. Nelson Mandela, you are the president of ANC, that is the Africa National Congress, and it's for sure that in the coming elections you will win with a big majority and you're going to become the president of South Africa. How will you treat the regime? जिन्होंने आपको जेल में डाला है उनके साथ आप किस प्रकार का वर्तन रखें? नेल्सन मंडेला हंस पड़े और क्या बोले कि I will include them in my government and give them ministries because they have the experience of running the ministries and we are new, so we want cooperation from them. We will jointly administer this country of South Africa and make it a great nation. क्या बात है! नेल्सन मंडेला को जिन्होंने 27 साल तक जेल में रखा, उनका भी कोऑपरेशन की इच्छा रखते थे। और सिर्फ इच्छा नहीं, वे जीते, प्रेसिडेंट बने, फुल मेजॉरिटी से बने, तो भी कई व्हाइट मिनिस्टर्स को कैबिनेट में लिया क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, उनके साथ बैठते थे, चर्चा करते थे, मीटिंग में साथ रखते थे, डिसीजन मेकिंग में साथ रखते थे। आज नेल्सन मंडेला का जन्मदिन है। अच्छा हुआ मुझे द कोर्स ऑफ दिस डिस्कोर्स एकदम से याद आ गया। So we pay tributes to such a great man who walked upon this earth. और उनके जीवन में से एक अच्छी बात आज हमने सुन ली, सीख ली, विचार योग्य यह बात है। So the psychology and behavior of cooperation and not competition. The President of the United States, once upon a time, John F. Kennedy, in his first presidential address on the national TV after winning the elections, he said a couple of very beautiful things. The first, he said that he told to the Americans that don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. उसी तरह हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अभी जीआरके में काम कर रहे हैं रवि जी के साथ, तो ये भावना हमेशा रखनी कि I will not ask what my organization can do for me. I will first ask myself every day in the morning, what can I do for my organization for the growth of us all? इस प्रश्न से दिन शुरू करना, इस प्रश्न के साथ उसका उत्तर लेते लेते पूरा दिन काम करते रहना। देखो आपका भी ग्रोथ होगा, आपके कलीग्स का भी ग्रोथ होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। ये साइकोलॉजी से काम करना, ये बिहेवियर से काम करना। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो ये भावना हमेशा रखना। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज हमारे सभी कार्यकर्ता को कहते थे, प्रमुख स्वामी महाराज ने दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहर में विचरण किया है। लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक,
नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए 7.5 लाख से ज्यादा पत्र पढ़े हैं और उत्तर दिए हैं, और 3.5 लाख घर, ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप में व्यक्तिगत गए हैं उनके सत्संग उत्कर्ष के लिए, प्रचंड पुरुषार्थ किया। We are about 1100 saints in the organization at the moment. More than 750 of them are graduates, postgraduates, chartered accountants, doctors, and engineers. More than like about 150 of these saints are born American and British citizens. They are NRIs, and more than 50 saints have studied in institutes like Harvard, Stanford, Carnegie Mellon, Yale, and such institutes. 55,000 का हमारा वॉलंटियर फोर्स है। इन सभी को प्रमुख स्वामी महाराज एक बहुत अच्छी सीख देते थे। वे कहते थे, उनके ही प्रासादिक शब्दों में आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्रमुख स्वामी महाराज ये कहते थे कि जहर खा के भी हमें संपर्क रखना पड़ेगा। When you are in an organization, when you are working together, when you want to work together, when we are in a network, when we are together on the same floor in the office, you have to gulp down even some harsh words, harsh activities to maintain unity so as the organization grows. And when the organization grows, the individual also grows. So professional life में ये behavior और psychology रखना cooperation। दूसरी psychology और behavior professional life में ethics की रखना, जो अभी मोतीलाल जी ने बहुत अच्छी तरह से बात की। Ethics is very important. Whoever you are, whatever you are, wherever you are, if you fail on ethics, you will fall. Anyone with lesser academics, lesser intelligence, lesser know-how, lesser experience, lesser support systems, lesser platforms, but if you are good at ethics, better at ethics, you will constantly grow. This is the power of ethics. वैसे इलेक्ट्रिसिटी का पावर तो पता नहीं चलता है रोज, क्योंकि डेली यूज में आ जाते हैं। हम ऐसे ही स्विच दबा देते हैं, लाइट चालू हो जाती है, फैन चालू हो जाता है। लेकिन प्लग में अगर आप उंगली डाले तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का पावर क्या है। उसी तरह रूटीन में एथिक्स का पावर पता नहीं चलेगा, लेकिन जब एथिक्स के साथ कुछ खिलवाड़ करेंगे, थोड़ा सा भी खिलवाड़ किया तो एथिक्स अपना पावर बताएगा। लंदन भागना पड़ेगा, एंटीगुआ भागना पड़ेगा, डोमिनिका चला जाना पड़ेगा। एथिक्स के साथ प्रश्न किए तो यस का नो जाता है। पता चला? द लास्ट सेंटेंस व्हिच आई स्पोक, एथिक्स के साथ अगर कुछ खिलवाड़ किया तो यस का नो हो जाता है, यस बैंक नो बैंक हो जाती है। पता चला ना? यस बैंक नो बैंक हो जाती है। इट हैज हैपेंड में सत्यम असत्य हो जाता है। डोंट प्ले विथ एथिक्स। कैन यू प्ले विथ फायर? यस और नो? कैन यू प्ले विथ वाटर? मतलब डैम होता है, लेक होता है, you can't play there. You can't play in uncharted waters. You can't play with fire. Can you play with a cobra? A cobra snake के साथ आप खेल सकते हो। You can't play with fire. You can't play with uncharted waters. You can't play with cobra. In the same way, you can't play with ethics. Whoever you are, whatever you are not bigger than ethics. As simple as that. Playing with ethics is playing with a wild cobra. Just one bite and you are gone, dead. इतना डेडली होता है ये कोबरा का पॉइजन। एथिक्स का इतना डेडली होता है। देखो एंटीगुआ में व्हीलचेयर में बैठ गए, जेट ऊपर दौड़ता था, अब पासपोर्ट सीज हो गए। जेट एयरवेज ऊपर उड़ता था, अब पासपोर्ट भी सीज हो गए। किंग ऑफ द स्काईज थे, कोई व्यक्ति किंग ऑफ द स्काईज थे, भागना पड़ा लंदन। राज्यसभा मेंबर थे इसलिए डिप्लोमेट्स पासपोर्ट था, भाग गए। आएंगे सब कोई वापस आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। What I mean to say is don't play with ethics.
Nobody has the right to play with ethics even after 40 years of experience, whatever you are, whoever you are. अब 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज थी। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे स्टीव स्मिथ, वाइस कैप्टन थे डेविड वार्नर और उनके बहुत अच्छे बॉलर थे कैमरून बैनक्रॉफ्ट। ये तीनों ने कुछ बॉल के साथ खिलवाड़ किया एंड इट वाज कॉट ऑन सीसीटीवी। शायद आपको ये प्रसंग आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। एंड दे with some shining metal strip, the ball was rubbed. दूर कैमरास थे पेविलियन में, वहां से वे पकड़ा गए। प्ले रुकवा दिया, पूछा गया। At the end of the day, they had to confess. स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, 1 साल का बैन आ गया। फिर डेविड वार्नर थे वाइस कैप्टन, 1 साल का बैन आ गया। बॉलर थे कैमरून बैनक्रॉफ्ट, उनको भी 6 महीने का बैन आ गया। लेकिन पता है क्या हुआ? In the inquiry that was put, internal inquiry after Steve Smith, the captain's statement. अब ध्यान से सुनना है, आप सभी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है आप सभी प्रोफेशनल्स के लिए। जब इंटरनल इंक्वायरी आई, तब स्टीव स्मिथ कैप्टन ने कहा कि बेसिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में एक कल्चर डेवलप हुआ है कि विन एट एनी कॉस्ट। प्रोफेशनल्स में ये कल्चर आ गया है, विन एट एनी कॉस्ट। विन एट एनी कॉस्ट। और दूसरा कल्चर क्या? कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी प्लेयर्स को ये कहा है कि यू आर पेड टू विन, नॉट जस्ट टू प्ले। यू आर पेड टू विन, नॉट जस्ट टू प्ले। हमारे प्रोफेशनल सर्कल्स में ये कल्चर जब आता है ना कि यू आर पेड टू क्रिएट प्रॉफिट्स, यू आर पेड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स इन टाइम एंड ब्रिंग बिग रिटर्न्स, तब एथिक्स का लोप हो जाता है। एनरॉन भी नहीं टिकी, सत्यम भी नहीं टिकी, तो क्या आप एथिक्स का उल्लंघन करके आप टिक पाओगे क्या? मर जाओगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, लेमन ब्रदर्स सुना होगा आपने, फाइनेंशियल सर्विस में ही थे 2008 में। लेमन ब्रदर्स जायंट एमएनसी, वो भी नहीं टिकी। इसलिए गूगल ने अपना मिशन स्टेटमेंट बनाया। गूगल ने कहा है, डोंट डू एनी इविल। अगर आपसे 2 अच्छे काम ना हो पाए चलेगा, लेकिन एक गलत काम मत करना। तो ये है आप सभी के लिए प्रोफेशनल लाइफ में साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। इसमें 2 बात मैंने कही। In your professional life, the psychology and behavior first should not be of competition and winning. It should be cooperation and let's win together. Second, it should be ethics. और आखिरी बात करके मैं प्रवचन पूरा करना चाहूंगा, your spiritual life में साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। नॉर्मली स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा साइकोलॉजी और बिहेवियर क्या है? मैंने तो भगवान देखे नहीं है, भगवान का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, इसलिए गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि आप अपने आप को मानते हो आई एम मॉडर्न, आई एम मोर कल्चर्ड, आई एम एडवांस्ड, यू नो, आई लिव इन द 21st सेंचुरी। आई जस्ट बिलीव व्हाट आई सी, आई जस्ट बिलीव व्हाट आई एक्सपीरियंस। ये गलत बात है। कैसे? मैं आपको बताऊंगा। जो वर्ल्डली चीजें हैं उसमें प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट सी एंड देन बिलीव। जो हेवनली बातें उसमें क्या है? प्रिंसिपल रिवर्स है, फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। सिंपल, फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। प्रिंसिपल ही अलग है, तरीका ही अलग है, दोनों को कैसे आप जुड़ पाओगे? In your spiritual life, the psychology and behavior is that God exists and behavior should be, He is the all-doer. Whatever has happened in my life so far, whatever is happening and whatever will happen, happens with the wish of God, happens for my good. And if I keep that psychology and if I keep that behavior, it will work for my advantage. आप एथीज्म की बात कर रहे हो, नास्तिकवाद की बात कर रहे हो,
मैं कभी आईएम में प्रवचन कर रहा था, प्रवचन के बाद किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आप भगवान में श्रद्धा की बात करते हो लेकिन साइंस इज एवरीथिंग। मैंने बोला साइंस इज एवरीथिंग, आई बिलीव बिकॉज आई एम आल्सो मैन ऑफ साइंस, आई एम एन इंजीनियर, आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग 30 years back. So I'm also a man of science, but at the same time I'm a man of spirituality, so I'll give you the answer in the combination of both. मैंने उनको कहा कि देखो साइंस सब कुछ आप कहते हो लेकिन साइंस जो कुछ आज प्रूव कर रहा है वो स्पिरिचुअलिटी में सभी कुछ बातें थी। और पहले मुझे आप ये बताइए कि साइंस के पास रॉ मटेरियल कहां से आया? साइंस जो भी संशोधन कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल किसने बनाया? साइंस ने रॉ मटेरियल नहीं बनाया है। 5 बेसिक रॉ मटेरियल हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, वो तो भगवान ने बनाए। समझे आप? साइंस क्या कर रहा है? ये 5 रॉ मटेरियल हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इस 5 बेसिक एलिमेंट्स, ये 5 बेसिक रॉ मटेरियल का कॉम्बिनेशंस डिफरेंट प्रोपोर्शंस में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करके नई नई चीजें बना रहा है। ये मोबाइल फोन भी है और पेंटियम 5 सुपर कंप्यूटर की चिप्स भी है, सभी कुछ धूल में से बने। तो बेसिक रॉ मटेरियल इज मेड बाय गॉड and then he has inspired all of us with different kind of intelligence to make different combinations of this basic 5 raw materials and produce new things. सभी का काम चलता है। मैं कभी हंसते हंसते बात करता हूँ कि 7 बिलियन की पॉपुलेशन है, सभी को जॉब तो देनी पड़ेगी ना सुबह से। तो भगवान ने ये 5 रॉ मटेरियल बना दिए, सभी को जॉब दे दी। तो स्पिरिचुअलिटी में ये बात रखनी है कि गॉड इज द ऑल डूअर, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। प्रमुख स्वामी महाराज जितना काम करते थे, एक बार नट्टू भाई पटेल अलीकोर इंजीनियरिंग कंपनी के जनरल मैनेजर ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा, पूछा कि स्वामी जी मैंने आपको हर परिस्थिति में देखा है, सुबह में मॉर्निंग वॉक में प्रातः पूजा करते हुए, लोगों को मिलते हुए, उनको आशीर्वाद आश्वासन देते हुए, मैंने आपको पत्र लेखन में देखा है, मैंने आपको सभा में बैठे हुए देखे हैं, लेकिन कभी आपके चेहरे पे तनाव नहीं देखा, थकावट नहीं देखी। क्या वजह है? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, देखो जिम्मेदारी तो है लेकिन रोज सुबह उठ के हम अपने भगवान और गुरु को प्रार्थना करके यही पूछ लेते हैं कि आज का काम क्या है और पूरी शक्ति और बुद्धि से काम करने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद शाम को वो काम अपने गुरु के चरणों में वापस रख देते हैं और गुरु को प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मैंने अपना काम अपनी बुद्धि शक्ति से वो पूरी लगा के करने का प्रयत्न किया है, अब जो भी परिणाम आपको देना है आप देना। देखो हम लोग ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते हैं ना, इसलिए हमारा ओवर अटैचमेंट टुवर्ड्स गोल है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना बहुत ध्यान से सुनना, बहुत विचार करेंगे ना तब आपको इसका एनालिसिस पता चलेगा। फिर से बोलता हूँ, स्पिरिचुअल एंगर, द डूअरशिप ऑफ गॉड हम नहीं समझते हैं ना, इसलिए वी आर ओवर अटैच्ड टू आवर गोल्स। गोल्स तय करना जरूरी है कि 2 साल के बाद मुझे यहाँ पहुंचना है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, वो तय करना जरूरी है ताकि आपके सामने गोल रहे तो आप दौड़ पाए। वो साइकोलॉजी ठीक है, लेकिन ओवर अटैचमेंट टू दैट गोल कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मैंने प्रयत्न किया फिर भी ये प्राप्त क्यों नहीं हुआ, मैंने पूरा पुरुषार्थ किया था फिर भी ये हासिल क्यों नहीं हुआ, मैंने अपनी बुद्धि शक्ति रिसोर्सेस सभी कुछ लगा दिए थे फिर मुझे ये बात क्यों नहीं मिली। ये प्रश्न से स्ट्रेस आता है, ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज आता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या समझाती है? अब ध्यान से सुनना। स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि जो भी काम करना है, जो भी संबंध रखने हैं, उसमें मैं अपने पूरे रिसोर्सेस लगा दूंगा। अंतिम परिणाम भगवान की इच्छा होगी वो मुझे मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ने ये बात कही, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दिस शुड बी द साइकोलॉजी एंड बिहेवियर दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पुट योर बेस्ट रिसोर्सेज टू कंप्लीट एंड अकम्प्लिश योर वर्क, बट the final results भगवान कृष्ण says I will decide। फिर क्यों चिंता रखनी है? काम अच्छी तरह से करो, एथिक्स से करो, पूरे हार्डवर्क से करो, सभी रिसोर्सेज लगा दो, लेकिन एंड रिजल्ट एक्सेप्ट करना सीख लो। ये साइकोलॉजी आपको सिखानी है, ये बिहेवियर आपको सिखाना है आज। फाइनल रिजल्ट एक्सेप्टेड, आपके गोल से थोड़ा कम आया फाइनल रिजल्ट, एक्सेप्टेड। When you deny the acceptance, you create stress. When you deny the acceptance, you are being cruel on yourself. ये हम नहीं समझ पाते।
तो ये थोड़ी बातें थी साइकोलॉजी एंड बिहेवियर्स में, मैंने आपको 4 बातें बताई. Towards the end of the talk, in just last 1 minute, I will conclude. I started with, if you adjust the man, the world gets adjusted by its own. First was psychology and behavior in your personal life. उसमें मैंने ये बात की, keep your eye small. Better the word than I is we. Personal life. दूसरी बात हमने ये बात आज सुनी, आज ये कही कि प्रोफेशनल लाइफ में not competition but cooperation. Second is ethics. तीसरी बात जो हमने स्पिरिचुअल लाइफ में सीखी, God is the all doer. Accept it. Do your best, but accept what he decides. तो आपको कम स्ट्रेस रहेगा, आप अपना जीवन अच्छी तरह से जी पाएंगे और आपको जीवन में बहुत अच्छा आनंद आएगा. So these are the psychologies and the behaviors that we live with. But we need to change our psychologies and behaviors to be a better human being, to better fit our ecosystem, to be a better citizen of the country, and thus a better being upon this planet, so that we enjoy life. We can put our hand on our chest and tell ourselves, yes, I live my life. Thank you very much for patiently listening to me. All my prayers for all of you. And may Bhagwan Swami Narayan, Bhagwan Krishna, Bhagwan Ram, Bhagwan Mahavir Swami, my Guru Hari Pramukh Swami Maharaj, and my Pragat Guru Hari Mahan Swami Maharaj bless you all. Thank you very much. Have a nice Sunday ahead. Thank you, Swamiji. Thank you. What a great session it was. Whether आपके कई बातों को मैं खुद भी अपने पर्सनल लाइफ में भी उतारने की कोशिश करता हूँ, कोशिश ही कर रहा हूँ, ट्राई करता जा रहा हूँ. आपने जो कहा कि डोंट कम्पीट बट कोऑपरेट ईच अदर, व्हाट ए रिमार्केबल सेंटेंस इट इज. रियली स्वामी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी. आपने इतना टाइम दिया, इतने अच्छे आपने शब्दों में यहाँ उच्चारण किया. मैं सोमेन को बोलूंगा, सोमेन क्वेश्चन सेशन नाउ, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड. थैंक यू रवि जी, थैंक यू सर. स्वामी जी, आपकी बातें सुन के मैं क्या बोलूं, आई एम ऑलरेडी इन क्लाउड 9 राइट नाउ, एंड इवन आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन, बट एज यू हैव सेड, आई को छोटा करना है तो पहले सबका क्वेश्चन लेना है, बाद में मेरा क्वेश्चन आएगा. So let's start with the question answer session round. I'm opening up the chat box to take the questions, and what I can see over here. जिनका भी क्वेश्चन रेज हैंड कर दें. एक श्रीचंद लेखवानी जी हैं दुर्ग से, ये काफी सीनियर चार्ट अकाउंटेंट है, श्रीचंद लेखवानी जी, और 20 सालों से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं. इनका एक क्वेश्चन है, ये काफी सीनियर चार्ट अकाउंटेंट है, श्रीचंद लेखवानी जी. हाँ जी, हाँ जी. स्वामी जी प्रणाम. प्रणाम जी, प्रणाम. स्वामी जी, जीवन में अनेक पड़ाव आते हैं, परंतु उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहता है अगली पीढ़ी का. हम अपने लिए आर्थिक चीजें इकट्ठा करते. लखवानी जी, आप फिर से बोलिए. जीवन में अनेक पड़ाव आते हैं, हम अपनी सफलता के पीछे लगे रहते हैं और अक्सर भूल जाते हैं अगली पीढ़ी के लिए. तब महसूस होता है कि कुछ कमी रह गई. कृपया कर गाइड करें कि अगली पीढ़ी में कल्चर डेवलप करने के लिए, अगली पीढ़ी में क्षमता डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, अगली पीढ़ी को अपनी संपदा और सत्ता हस्तांतरण करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. दोनों बातें आपने अच्छी पूछी. मैं दोनों बातों का एक ही लाइन में उत्तर देना चाहूंगा कि हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि घर सभा, कि अगर आपको अपनी अगली पीढ़ी में कल्चर डेवलप करना है, जो ट्रेडिशन है आपकी फैमिली का या सनातन ट्रेडिशन है, उसको डेवलप करना है, तो रोज रात को या हफ्ते में 2-3 दिन रात को 20 मिनट के लिए साथ में बैठे विदाउट द हेल्प ऑफ द टीवी एंड द डिनर टेबल, और वो 20 मिनट सिर्फ कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सचेंज एक दूसरों के साथ करें. यू कैन पिक अप रामायण, यू कैन पिक अप महाभारत, यू कैन पिक अप श्रीमद् भगवत गीता, और उसका पठन करें, शेयर करें, प्रश्न पूछें, क्या कोई समझे. तो दिस 20-minute session at least twice or thrice in a week can transmit the cultural and traditional values in the next generation, अगली पीढ़ी.
और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए अगली पीढ़ी को जब सत्ता हासिल हो, तो ये कल्चर और ट्रेडिशन आपने नेक्स्ट पीढ़ी में डाले हैं, तो उसकी सावधानी नेचुरली उसको बरतेगी कि आई मस्ट रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स। ये प्रथम सावधानी अगली पीढ़ी को रखनी है। आई मस्ट रिस्पेक्ट माय एल्डर्स, आई मस्ट टेक केयर ऑफ माय एल्डर्स, आई मस्ट शेयर एंड केयर विथ माय एल्डर्स। इतनी एक सावधानी बरते तो दो पीढ़ी के बीच जो जनरेशन गैप है वो कम हो सकती है, मिट भी सकती है। और even we have seen, and you might also have seen in families where 2 and 3 generations they come together and live peacefully. Thank you. मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। मैं यहाँ एक अपडेट करना चाहूंगा कि मोतीलाल जी साहब भी वो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। उनके लिए भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो आप बता सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस जो दोनों स्पीकर हमारे लिए, हम लोग फॉर्चुनेट है जारके परिवार, दोनों स्पीकर अभी क्वेश्चन आंसर के लिए मौजूद है। सर ओसवाल साहब से एक प्रश्न है सर। बिल्कुल, आप बोलिए। पहले सर अपना नाम ओसवाल बताइए। साहब, सर मेरा नाम CS श्रीचंद लेखवानी है, मैं रवि जी का मित्र हूँ सर। अच्छा, सर अपना प्रश्न बोलिए। सर दो बातें, एक, आपकी इस सफलता के पीछे आप अपनी कौन से गुण को पाते हैं कि इस सफलता को हासिल करने में उसने सहयोग किया। दूसरा, हम छोटा सा व्यापार या कारोबार नहीं संभाल पाते, आप इतना बड़ा कारोबार संभालते हैं, इस मैनेजमेंट का राज कृपया बताइए। देखिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से मोरल सेम ही आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वन इज रियली दैट डू यू थिंक बिग, ओके, दैट आई थिंक से एट व्हाट स्टेज यू आर एंड ट्राई टू सी कि भाई यहाँ से मैं एवरी डे कैन आई बिकम बिगर एंड बेटर। आई ऑलवेज से दैट इवन टुडेज थॉट व्हिच आई शेयर्ड दैट एटलीस्ट how we can, I think, keep better in short term and how we can think bigger in long term. That's very important. तो अपना ambitions, अपने goals कैसे बड़े आप सोच सकते हैं, उसके हिसाब से आपको आइडिया मिलता रहता है। दूसरा चीज है नॉलेज। डॉक्टर ज्ञान वत्सल जी हैं, so ज्ञान मतलब नॉलेज। So the power of knowledge, that how you can really, I think, every day have that mindset of a student that am I learning something every day? Because दुनिया में इतनी सारी चीजें बदल रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए बिजनेस मॉडल, रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यूज, I think new products. So everything really, I think, changing so fast that how do we really, I think, not only update ourselves but upgrade with the knowledge. That's very important. And most important thing is the value system, the integrity, the ethics. स्वामी जी ने जो बोला ना कि यस बैंक कैसे रातों रात नो बैंक हो गया, या सत्यम नाम सत्यम था लेकिन सब उनकी प्रैक्टिसेस असत्य हो गई, असत्य प्रैक्टिसेस थी। I think in this kind of world your reputation is very, very important, and reputation actually it takes to build years and decades, but it can be actually finished in few seconds. So that's the way I would look at it. So ethics are very important, knowledge is very important, your vision, your thinking big is very important, and the last thing is that how do you align with people? That's also very, very critical. That do you align with right kind of people who share your passion, who share your values, who are actually better than you, who bring a very different kind of, I think, skills on the table. If our company has about 10,000 employees, it is not that really I think I am working. All 10,000 people, we are all working together to make sure that I think the company grows bigger by becoming better. Thanks. मोतीलाल जी, मैं आपके उत्तर में एक छोटा सा एडिशन करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत है तो। प्लीज सर। तो मैं आपको जो आपने इजाजत बताया आपका आदेश है, आप हमारी इजाजत नहीं, आपका आदेश। थैंक यू एज अ फ्रेंड। तो आपने जो बताया एथिक्स, दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। दूसरी बात आपने बताई कि विजन एंड नॉलेज, दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। द थर्ड थिंग आपने बताया हाउ अलाइन द राइट काइंड ऑफ पीपल।
तो तीसरी बात है वो भी इतनी महत्वपूर्ण है. If you align with the right kind of people, number one. Second, as you said, those people who can bring better skills and better talents, better know-hows and better experience on the table. And third thing, those people who are wedded to integrity and values in life. इस प्रकार के लोग के साथ आप रहेंगे, यू आर नोन. हम छोटे थे तब एक अच्छी कहावत स्कूल में पढ़ते थे कि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप. उसमें भी एक एडिशन करना चाहूंगा, यू ग्रो बाय द कंपनी यू कीप. You are definitely known in the society by the company you keep, but you also grow by the company you keep. Absolutely. तो ये एक छोटी साथ बात थी जिसका भाव तो मोतीलाल जी ने समझा दिया था, लेकिन मुझे ये शब्द प्रयोग करने थे इसलिए मैंने एडिशन किया. थैंक यू वेरी मच. Thank you. So just a one short name, I was just remembering that my kit for success is KIT, knowledge, integrity, team, and really I think for the fourth thing I said was thinking big. That how do you, I think, have your passion and vision. So kit plus vision is really, I think, what you can kind of, I think, keep a very short and sweet kind of answer. So Motilal ji, you can have your spelling of kit as KITT. So knowledge, integrity, team, and thinking. Yeah, think big. Yeah. Yeah, so thinking basis. So your spelling for kit is KITT. Yeah. You can keep KISS also, KISS also. Yes, in the spirit, spirituality. Yeah, that is from my side. Sir, there are so nice. Hello. Ravi ji. हाँ, दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि बस मन कर रहा है बिल्कुल सुनते रहे दोनों को. दोनों स्पीकर इतने अच्छे तरीके से दोनों ने जवाब दिया. नेक्स्ट ऑलरेडी रेज हैंड है नीरज बेनाड़ा. नीरज बेनाड़ा जी, आपका क्वेश्चन. आप. स्वामी जी नमस्कार. नमस्कार. मेरा क्वेश्चन है, आपका गोल निश्चित होने के बाद और उसे पूरा करने की क्षमता भी है, लेकिन कुछ लोग उसमें रुकावट डालते हैं, तो उस गोल को कैसे प्राप्त करें और पूरा करें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा नीरज जी कि आपका गोल तय है और आपको वहां पहुंचना ही है और आप कटिबद्ध हो, लेकिन फिर भी there are people who put hurdles in your path. So how do you reach the goal? और आपने एक नाम सुना होगा जो पृथ्वी पे सबसे बड़े एथलीट, सबसे बड़े स्पोर्ट्स पर्सन माने जाते हैं, ऑल टाइम ग्रेट माने जाते हैं, एडविन मॉसेस. वो 110 मीटर्स हर्डल्स दौड़ते थे. He has got more than 70 to 80 international medals in 110 meters hurdles race. He has competed in more than 4 Olympics with getting gold medals every time in the 110 meters hurdles. वे जब रिटायर हुए तब आपने जो अभी प्रश्न पूछा वही प्रश्न पत्रकार ने रीडर्स डाइजेस्ट में उनको पूछा, रीडर्स डाइजेस्ट के जर्नलिस्ट ने. उसके उत्तर में उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था. वो वाक्य मुझे बहुत पसंद है और आपसे मैं वही शेयर करना चाहूंगा इन द एग्जैक्ट इन्वर्टेड कॉमा वर्ड्स ऑफ एडविन मॉसेस, जिनको प्रेम से लोग एड मॉसेस बुलाते थे. एड मॉसेस ने कहा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, hurdles are those which you see when your eyes are off the goal. लोग तो आपके रास्ते में रुकावट डालेंगे, लेकिन आप उस पर नजर क्यों रखते हो? आप उस पर ध्यान क्यों केंद्रित करते हो? Don't take that in your stride. Hurdles are those which you see when your eyes are off the goal. उन्होंने कहा कि मैं 110 मीटर हर्डल्स दौड़ता था, मतलब हर 10 मीटर में एक हर्डल आता है, कूद के अनदर 10 मीटर्स दौड़ते हैं, अनदर हर्डल आता है, 10 हर्डल्स होते हैं 110 मीटर्स में. उन्होंने कहा कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेस एंड व्हाइल रेसिंग माय आईज वर ऑलवेज ऑन द विनिंग पोस्ट एंड ऑन द पेडेस्टल ऑन व्हिच आई एम सपोज्ड टू स्टैंड एंड गेट माय मेडल. मैं सिर्फ वो पेडेस्टल ही देखता था, 10 हर्डल्स देखता ही नहीं था. राइट. और महापुरुष के जीवन चरित्र आप पढ़ें, सभी महापुरुष के जीवन में रुकावट, पत्थर डालने वाले बहुत थे, but with those stones thrown at them, they did not allow the creation of a wall. They created a bridge by those stones thrown at them, crossed over the bridge towards their goal. Thank you. Thank you.
थैंक यू स्वामी जी। सर नेक्स्ट रेज हैंड है। हाँ सर, मैं मेरे तरफ से दोनों गेस्ट के लिए दोनों प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। सर, पहला क्वेश्चन मेरा मोतीलाल ओसवाल जी से है। सर, मैं यहाँ पे जेआरके में आई एम द हेड ऑफ द रिसर्च, और सर आपको भी पता है कि किस तरह डिसरप्शन हो रहा है डिजिटली, द वर्ल्ड इज गेटिंग डिसरप्टेड, कितने सारे चेंजेस आ जा रहे हैं। एंड आफ्टर गिविंग 14-16 आवर्स डेली, इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतने सारी कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, कॉन कॉल पढ़ो, मैनेजमेंट के डिस्कशंस पढ़ो, इतना करने के बाद भी वी रियलाइज दैट वी आर मिसिंग आउट समथिंग, एंड देन वी गेट इनटू स्ट्रेस कि हमारा कन्विक्शन कहीं शेक ना हो जाए, बिकॉज आई आई माइट नो समथिंग लेस। तो ये स्ट्रेस से कैसे ओवरकम हो सकता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा स्वामी जी आई थिंक आपको ज्ञान दे सकते हैं, that power of spirituality, how really I think you can really I think manage your stress, because stress actually is a kind of self-inflicted kind of stuff. अब जैसे आप देखिए, lot of people I think they really I think have huge number of things to do with all the adversity, family में, social life में, personal level पे, health related issues, but some people are able to really I think manage it successfully. So I think the way I do is really my meditation, my yoga, my walk, and my reading. These are the things really I think which really I think reduce my stress to some level. Second thing, that some amount of stress is good. There's a positive stress and there's a negative stress. So there must be some pressures on us to really I think make us better, make us kind of I think work hard, make us kind of going out of comfort zone. So these are the things which really I think I would say positive kind of stress which we need to take so that we become far better as a human being and as a professional. स्वामी जी, I think शायद उनके पास बड़ा गुरु मंत्र है. थैंक यू फॉर द पास ऑन मोतीलाल जी। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो अभी मोतीलाल जी ने बात कही, उसमें मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो थोड़ा होना चाहिए। तो ही सुबह में आज 5 बजे उठेंगे, तो ही 9 बजे आप ऑफिस में बैठ जाएंगे, और तो ही यू विल ग्रो एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज अ प्रोफेशनल। थोड़ा स्ट्रेस और टेंशन तो जरूर चाहिए, लेकिन जब हम पर्सनली स्ट्रेस को समझ नहीं सकते हैं, नाउ आई एम कमिंग टू एन आंसर टू दिस, that when we don't understand the stress well, we don't understand the reasons of the stress, we don't understand the origins of this stress, we are not able to handle it well. See, स्ट्रेस तो आएगा जीवन में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। ये ह्यूमन लाइफ है, ये वर्ल्डली अफेयर्स हैं, ये सांसारिक जीवन है, जरूर आएगा प्रोफेशनल करियर्स में। स्ट्रेस नहीं आना चाहिए वो कभी अपेक्षा मत रखना। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मोतीलाल जी ने अच्छे उपाय बताए हैं, उसमें मेडिटेशन और योगा की भी बात की कि ही टेक्स द रेफ्यूज ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट, द बिगेस्ट आंसर टू स्ट्रेस। उसमें मैं नाम स्मरण जोड़ना चाहूंगा कि जो भी भगवान में आपको श्रद्धा। नाउ आई विल टॉक टू यू वेरी साइंटिफिक, नॉट जस्ट एज अ सेंट। जब आप में तनाव आता है, तब आपके शरीर में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक हार्मोन है कॉर्टिसोल और दूसरा हार्मोन है एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, ताकि उसका रिजल्ट क्या आता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट? द हार्ट रेट इंक्रीजेस, पर्सपिरेशन, थकावट, ये सभी महसूस होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल प्रयोग किया कि स्ट्रेस के वक्त अगर आप शांति से बैठ के, जो मोतीलाल जी ने बात की, आंख बंद करके आप भगवान का नाम स्मरण चालू करें, तो उसी वक्त प्रैक्टिकली ये पता चला कि एक और हार्मोन आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, उसका नाम है एंडोफिन। ये एंडोफिन हार्मोन एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल दोनों का प्रभाव दबा देता है। आई एम टॉकिंग एब्सोल्युटली साइंटिफिक।
मोतीलाल जी ने जो बात की वो कितनी साइंटिफिक है कि योगा, मेडिटेशन एंड चैंटिंग द होली नेम कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स टू अनइमेजिनेबल लेवल्स। तो एंडोफिन जब रिलीज होता है, नामस्मरण करते हो आप, तो ये एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल का प्रभाव दबा देता है, आपको कामनेस, कूलनेस, स्टेबिलिटी का अनुभव होता है। यह प्रयोग करना ये हकीकत है। तो मैंने आपको नाम के साथ बताया। और दूसरी बात, इन जस्ट 1 minute आई विल कंक्लूड, एक्सेप्ट द डूअरशिप ऑफ गॉड। भगवान सर्व करता रहता है। मुझे बुद्धि भी भगवान ने दी है, मेरी कार्य शक्ति भी जो कुछ है वो भगवान ने दी है, और मेरे प्रयत्न से जो मुझे सफलताएं मिलती है वो भी भगवान की कृपा है। ये समझेंगे तो अहम भाव कम हो जाएगा कि आई एम दिस, आई अचीव दिस, आई क्रिएटेड दिस। ये अहम भाव कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। जो थोड़ी बातें मैंने प्रवचन में की थी, doership of God, not doership of you. When you accept the doership of God and discard the doership of your own self, and there will be no stress in life. मैंने अपना प्रयत्न पूरे रिसोर्सेस लगा के शाम तक कर दिया, सुबह से शाम तक 10 घंटा। अब जो भी परिणाम आया मुझे मंजूर है। Because if there are 10 reasons that can bring success to you, like your ability, experience, teamwork, whatever, 10 reasons that work in favor of you to bring success, there are other 10 reasons which are equally effective in bringing failure to you. समझ लो गवर्नमेंट की पॉलिसी एकदम से बदल गई। समझ लो कि एफडीआई का फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो का प्रोपोर्शन बदल गया। समझ लो कोई हर्षद मेहता आ गया अंदर, आते जाते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। देयर आर 10 फैक्टर्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल। अब पिछले 10 दिन में आप समाचार सुनते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई। मोतीलाल जी, एम आई राइट? फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फॉर टू व्हीलर्स। So definitely other people are going to get affected who produce petrol and diesel run vehicles, two wheelers, and government की बहुत बड़ी सब्सिडी है। तो ऐसी कुछ पॉलिसी बदल गई, अगर नई पॉलिसी आई तो any business can get affected any time. So what I mean to say is, if there are 10 reasons and factors that can affect the outcome of your project positively and bring you success, there are other 10 factors which are not in your control and which are affecting equally to bring the final outcome as less success or failure, which are not in your hands. Then why are you getting into stress? जो बात आपके हाथ में नहीं है वो सोच के आप क्यों तनाव में आते हो? तो मैंने दो बात की, एक भगवान का नाम स्मरण और भगवान सर्व करता है। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, Swamiji and Motilal ji sahab. Now, next question from Mr. Ashok Ajmera. He is very dear friend of mine. Ashok uncle, आपका किससे question किनसे? Unmute करें। रवि जी, we take this last question. स्वामी जी, नमस्कार स्वामी जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे एक मौका मिला इस बार भी आपसे क्वेश्चन पूछने का। मैं आपके काफी लेक्चर अटेंड कर चुका हूं और बहुत ही प्रेरणा मिलती है उससे। स्वामी जी, आपने अभी जो ये एथिक्स के ऊपर बताया, एथिक्स जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग जिस व्यवसाय में हैं, जिस फाइनेंशियल मार्केट में हैं, कई बार आपने साथ में ये भी बताया कि रूल्स चेंज हो जाते हैं, देखने का नजरिया चेंज हो सकता है, पॉलिसी चेंज हो जाती है। हम जब कुछ कार्य करते हैं हम उस समय के हिसाब से हमारे एथिकली हम काम करते हैं, लेकिन बाद में कई बार ऐसा होता है कि उसको अनएथिकली या इनएथिकली माना जाता है या हम उसके चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मतलब अच्छे लोग जो खुद एथिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं, लेक्चर देते हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके ऐसे टाइम पे क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए या कैसे हम उसको डाइजेस्ट करें इस चीज को कि हम एथिकल थे बट हम अनएथिकल प्रूव हो गए।
आपने जो प्रश्न पूछा उसका भावार्थ जिस तरह से मैं समझा कि आपने तो एथिकल प्रैक्टिसेस की, लेकिन आपके साथ वाले लोग ने कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, ताकि परिणाम जो भी आया, लेकिन उनके साथ आप भी अनएथिकल लोग आपको भी समझने लगे। एम आई राइट? मैं जो समझा हूँ। यस। हाँ, तो देखो, आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप एथिकल वैल्यूज के साथ आप शादी करें, एथिकल वैल्यूज को पकड़ के रखें। और चिंता मत करना, जिन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की हैं वो लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। एंड अगर इफ यू हैव रिमेन वेडेड टू एथिकल प्रिंसिपल्स इन लाइफ, you will definitely also get the advantage of ethical behaviors and ethical psychology. दूध का दूध और पानी का पानी समय पे हो ही जाता है, आप चिंता मत करना। शायद इनिशियली थोड़ा ब्रंट लगेगा, शायद इनिशियली आपकी फिंगर्स भी जलेगी, बिकॉज वहां सब जल रहा है, तो मे बी योर फिंगर विल गेट बर्न, बट दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है, वो निश्चित है, तय है, because the world is round, it has no corners, so it does not have the place to keep anybody's wrongs. ये भगवान की कृपा रहती है, जो धर्म के साथ मतलब एथिक्स के साथ रहता है, उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना वो भगवान की जिम्मेदारी रहती है। तो आप भगवान पे विश्वास रखो कि टीम में या ऑफिस में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, आप भी उस टीम में थे, आपकी भी गिनती अनएथिकल में होने लगी, लेकिन शायद इनिशियल स्टेज में ये होगा, लेकिन भगवान एथिकल वैल्यूज जो रखते हैं उनके प्रति प्रेम रखते हैं। गॉड लव्स रिलीजियस पीपल, गॉड लव्स एथिकल पीपल, so if you are ethical, the love of God will definitely bring you out of the issue, and whoever is whatsoever, their exact image will be produced there. So आप चिंता मत करना। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी, इफ टाइम परमिट्स, एक दो या दो क्वेश्चन और ले लें, अगर आप टाइम परमिट हो, अगर हम तो बैठे हैं, लेकिन मोतीलाल जी को शायद देर होती होगी और he must be engaged बस दो लास्ट टू क्वेश्चन ओनली, लास्ट टू क्वेश्चन। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विकास बैद जी। विकास बैद जी, आपका किन से क्वेश्चन है? स्वामी जी, सादर प्रणाम। मैंने अहमदाबाद में और कोलकाता में दोनों ही मंदिर आपका देखा है, सौभाग्य मिला है, बहुत ही सुंदर है। मेरा प्रश्न आपसे था, जो डूअर इज लीव द डूअरशिप टू गॉड, मैं इसमें मेरे 3 पैरामीटर्स में हैं जो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। मैंने सुना है भाग्य और कर्म में युद्ध होता रहता है, जिसकी विजय होती है वही मिलता है, या मेरे पिताजी कहते थे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, या मैंने सुना है दैट मैन्स ईगो इज द फाउंटेन हेड ऑफ ह्यूमन सक्सेस। अगर मैं अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, हाउ डू आई अश्योर माई सेल्फ दैट द डूअरशिप इज विद गॉड? ये 3 पैरामीटर्स मैंने आपको पुट अप किए हैं। मैं समझ गया, जो आखिर में आपने बात बताई वो सारांश था, but that was the extract of it. If I am not able to realize my full potential, or if I am not able to fulfill my dreams, if I am not able to reach the goals that I have decided, how can I accept the doership of God? तो उसका आंसर एक लाइन में यही है, ध्यान से सुनना। I'll just speak one line इसके आंसर में। As I said in my talk, as a human being, our duty and responsibility is put in all our resources at play. And after putting all the resources at play, the final results you accept as the worship of God, so as to not slip into depression and stress. Again, next morning, remember the spider. A spider crawls up on the wall. It falls. Very next moment, starts again. Falls. Very next moment, starts again. The spider is an ideal for us. Any number of times that you fall, again, it's a human endeavor. Dignity. सिर्फ मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, मनुष्य का गौरव है। It's a human dignity that you again start crawling up to realize your goal, to achieve what you decided in life. But while falling, while starting, and while crawling up the wall, always keep that thought that I have to put my efforts
but I will accept the doership of God. If I fall 10 times, it's God's wish. If I fall just 2 times and reach my goal, it's God's wish. So that you are at peace with yourself. You enjoy and experience calmness and coolness within. ये आपका प्रश्न का उत्तर है. तो इन वन लाइन, प्रयत्न मत छोड़ना जब तक आपका गोल हासिल हो. पुरुष प्रयत्न करते रहना, सभी रिसोर्स काम पे लगाते रहना, लेकिन ये विचार मन में रखना कि भगवान करता हरता है. प्रयत्न मैं करूंगा जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, जब तक मेरे मन में मनोबल है, प्रयत्न करता रहूंगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स आई विल एक्सेप्ट. And if you don't accept, what can you do? If you don't accept, what will you do? If you don't expect, can you fight a legal battle against God? Or will you fight against God? क्या गाली देंगे आप उनको? You have to accept the doership of the all-pervasive God. Thank you very much. प्रणाम स्वामी जी, बहुत सुंदर. Thank you. It's motivational. Thank you. लास्ट क्वेश्चन ओनली. राजेश जोधानी जी हैं, आपका क्वेश्चन कैंसर. राजेश जी, आप अनम्यूट करें. लास्ट क्वेश्चन है. प्रणाम गुरुजी. नमस्कार. प्रणाम. Am I audible? Yeah. Yes, yes. Am I audible? Yes. Carry on. प्रणाम गुरु. मेरा एक क्वेश्चन आपसे. बचपन से दादाजी से सुना कि जिंदगी में एम हमेशा बड़ा रखो, लेकिन उसकी पूरे होने की कंडीशन मत रखो, उसके हिसाब से प्रयत्न करते रहो. जैसे आपने अभी कहा पहले क्वेश्चन वालों से, अब बचपन का एक सपना है, बहुत बड़ा एम है मेरा लाइफ का, और मैं हर दिन में 10 सपना देखता हूँ और उसको पूरा करने के हिसाब से ही काम, मतलब जो भी एक छोटा से भी छोटा काम करता हूँ, तो मेरा वो एम हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, लेकिन मैं कभी उसको पूरा होने का कंडीशन भी नहीं रखता हूँ. आई एम ऑलवेज हैप्पी ऑल्सो. लेकिन क्या है कि मैं जो काम कर रहा हूँ 20-25 साल से, उसमें मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूँ. आई हैव मिनिमम 14 आपका क्वेश्चन पूछे राजेश जी, आपका क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे. आपका क्वेश्चन. क्वेश्चन मेरा यही है, आपका क्वेश्चन क्या वो पूछिए डायरेक्ट प्लीज. मेरा पर डे वर्किंग आवर इतना ज्यादा है कि मैं ओ एम को पूरा करने के लिए समझ लीजिए प्लान नहीं कर पा रहा हूँ या इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं कैसे उसको ओवरकम करूं या कुछ कैसे उसको इम्प्लीमेंट करूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है. तो मैं शायद क्वेश्चन ठीक से पूछ नहीं पा रहा हूँ आपको. मैं समझ गया आपको. मैं समझ गया. आपके प्रश्न का उत्तर एक लाइन में ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस. आप थोड़ा बैलेंस नहीं कर पा रहे हो. आप बोलते हो कि आप 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करते हो, लेकिन उस काम के बीच आपका जो मुख्य ध्येय है, जो आपने तय किया है बचपन से, वो उसके लिए आप ठीक ढंग से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट एबल टू प्लान इट वेल. दैट्स योर बेसिक क्वेश्चन. So you have to balance your work and your life. You have to find time for the final aim of life that you have decided upon. You have to sit and plan effectively for the goal that you have decided in your life. If you just keep on spending time on other small goals, if you just keep on spending your energy on other posts, then you will not be able to find time and energy both for the real goal, ultimate goal that you have decided in your life. So आपका प्रश्न का प्रैक्टिकल जवाब ये है कि आप थोड़ा काम करना कम कर दें. इतने लंबे घंटे तक काम करने की जरूरत नहीं है. 8 घंटा या 10 घंटा काम करें, लेकिन बाकी के समय में थोड़ा प्लानिंग ठीक करें, ताकि आपने जो तय किया है आपका अंतिम गोल, उसकी तरफ आप अच्छी तरह से चल सके. थैंक यू. थैंक यू स्वामी जी. एक अभी नीरज जैन जो कि हमारे जेआरके टीम से ही काफी ऑलरेडी स्टार्टिंग से लास्ट 20 साल जुड़ा हुआ, उसने अभी लास्ट रेज हैंड किया है काफी. नीरज जल्दी से क्वेश्चन पूछो. ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं ऑलरेडी दोनों स्पीकर का. प्लीज जल्दी से पूछो. स्वामी जी सादर प्रणाम. मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है. आदमी को मोटिवेट क्या देखकर होना चाहिए? अपने से नीचे वालों को देखकर या अपने से ऊपर वालों को देखकर? मैं जेआरके के साथ 20 सालों से जुड़ा हुआ हूं. जब से जेआरके की जर्नी शुरू हुई है तब से मैं जेआरके के साथ हूं. दोनों को देख के आप मोटिवेट हो सकते हो. किस तरह से मैं आपको बताऊं. अगर आप धन की दृष्टि से देखें तो गरीब को देख के आप किस प्रकार से मोटिवेट होंगे कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैं काम में एथिक्स नहीं रखूंगा, तो कभी मेरी भी ये परिस्थिति बन सकती है. तो आप एक धन की दृष्टि से गरीब को देख के
पुरुषार्थ और नीति के रास्ते पे चल पाएंगे, और अपने से ज्यादा धनवान को देख के आप ये मोटिवेट कर सकेंगे अपने आप को कि मैं पुरुषार्थ करूंगा तो वहां तक पहुंच सकता हूं। तो धन की दृष्टि से नीचे देखेंगे गरीब को तो नीतिमत्ता, प्रामाणिकता और की प्रेरणा मिलेगी। ऊपर वाले को देखेंगे तो पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलेगी कि अगर मैंने नीति नहीं रखी तो वहां गिर सकता हूं, और अगर मैंने नीति से पुरुषार्थ किया तो वहां तक भी पहुंच सकता हूं। तो नीचे देख के भी आपको प्रेरणाएं मिलती हैं, ऊपर देख के भी आपको प्रेरणाएं मिलती है। किस दृष्टि से आप देखते हैं? एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा पुस्तक सजेस्ट करना चाहूंगा। पुस्तक का शीर्षक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। राइटर है जेफ केलर, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट राइटर्स। ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर्स में कई हफ्तों तक थी, एंड इट इज अ वंडरफुल बुक। एटीट्यूड इज एवरीथिंग सभी प्रोफेशनल्स को पढ़नी चाहिए। उसमें आपके अभिगम एटीट्यूड्स को बहुत अच्छी तरह से जेफ केलर सिखाते हैं, that you can take inspirations from not just even living beings, from even non-living beings in your life. Thank you धन्यवाद very गुरुजी, much. धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। मैं दोनों स्पीकर का, मोतीलाल जी साहब और स्वामी जी, दोनों स्पीकर का जिन्होंने इतनी अच्छी बातें जेआरके के लिए और मेरे लिए जो कही है, या अपने सेशन में जो इतनी बातें कही, मैं लाइफ लॉन्ग ये चेरिश करूंगा। मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग ऑलवेज रखूंगा और सुनता रहूंगा कि मैं ऑलवेज मोटिवेट होता रहूं। वोट ऑफ थैंक्स एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन मैं दिल के जो जितने जो वर्ड्स हैं मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। फॉर्मेलिटी है वो एक वोट ऑफ थैंक्स। सोमेन प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। सर आपने ऑलरेडी बोल दिया कि ये एक फॉर्मेलिटी है। एक्चुअली द ट्रूथ इज दैट आई हैव नो वर्ड्स। In fact, I am in cloud 9 after sharing the screen with Swamiji and Mr. Motilal Oswal ji. The insights which both of you have shared will definitely add a lot of value to each one of us, those who have joined this webinar. मैं छोटा सा सम अप कर देता हूं सर। मोतीलाल ओसवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इमोशन, ग्रीड, फियर, होप से ओवरकम होना पड़ेगा सक्सेस के लिए, एंड इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप। और वही बात को आगे बढ़ाया स्वामी जी ने कि इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप तभी आएगी जब हम आई को सैक्रिफाइस करेंगे एंड कॉपरेशन की तरफ जाएंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये सेशन सभी को अच्छे लगे होंगे, और दोनों अपने स्पीकर्स को मैं I'm ready. I don't have any words to express my emotion. I'm really very grateful that you came and you gave time to us. And from JRK's point of view, I'm thankful to everyone who have joined this webinar. This is just a starting. We will do many webinars like this. We will keep engaging everyone at a different platforms with different perspectives. Thank you everyone for coming in this webinar. Thanks a lot. मोतीलाल जी नमस्कार। थैंक यू मोती भैया, स्वामी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोतीलाल जी हैं ऑन स्क्रीन? हाँ जी, मोतीलाल जी, हाँ जी, यस, एकदम ठीक है स्वामी जी। आपकी सेहत ठीक है? एकदम बढ़िया है। सो नाइस टू हम तो आई थिंक कोरोना के पहले मुंबई में मिले थे। आपकी ऑफिस में साथ में बैठे थे, बहुत बातचीत हुई थी। उसके बाद आपके प्रोग्राम आया ना निबॉम्बे में? हाँ आए थे। हाँ, डीवाई पाटिल प्रोग्राम में आप आए थे। हमारा निमंत्रण था और आप प्रेम से स्वीकार करके पधारे थे। तो बस फिर तो कोरोना आ गया, फिर तो कुछ ऐसे इवेंट्स और प्रोग्राम्स हो नहीं रहे थे। लेकिन जस्ट टू शेयर विथ यू मोतीलाल जी that we had some wonderful webinars during this corona times. Okay, very good. This is the best way to reach to many people. हाँ, टेक्नोलॉजी तो है, वो तो अपग्रेड होनी चाहिए दिन प्रतिदिन ताकि ज्यादा लोग उसका लाभ ले पाए, और at their comfort people can join from their homes or comfort places to gain knowledge. And as you rightly said, I fully agree with you. 110% I agree that knowledge should be upgraded almost like every day. Absolutely, that's the whole word. So many things are happening and changing, and kind of I think disruptions are happening. Especially technology is the biggest disruptor. हाँ, and disruptor भी है और technology is the biggest advantage for growth. Yeah, दोनों है साथ में. Yeah, if you can exploit the power of technology, then I think you reached your goal. देखो अभी ये एलन मस्क हैं, तो एलन मस्क ये सोच रहे हैं कि स्टारलिंक इंटरनेट,
अब इंटरनेट की पूरी दुनिया बदल जाएगी कि आप कोई माउंटेन की केव में धरती के नीचे हो तो भी आपको 5G परफेक्ट मिल पाएगा, क्योंकि स्टारलिंक इंटरनेट है। एलन मस्क की इंटरनेट आएगी तब तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। You see, everything is changing so fast. And another thing is this power of social media, which is also enabled by technology. डेफिनेटली हर सोशल मीडिया में हर व्यक्ति अपना अभिप्राय रख सकता है, हर व्यक्ति एक एक्सप्रेशन दे सकता है। So that opinion and expression that can be expressed by the smallest citizen is the power of democracy. That is how the democracy remains vibrant. Absolutely, absolutely. But there are a lot of cons. Pros are there, cons of there. Everything is kind of. It is. See, everything has a double edge. Everything Yes. is a double. Technology is definitely a double-edged one. तो हम प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने पूछा था न्यूयॉर्क में कई सालों पहले कि ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट है वो लाभदायी है, इट इज अ ब्लेसिंग और कर्स। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर एक वाक्य में दिया था कि अगर विवेक से उपयोग करे तो टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग, और विवेक चूक गए तो टेक्नोलॉजी इज अ कर्स। So Vivek and Avivek, Satyam and Asatyam. Yes or no? Yes or no? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं। Make them understand better. We have seen corporate world में every day something happening where really people compromise on their ethic in short term. Everywhere. और मैंने एक छोटा सब्जेक्ट को it was in my mind at the moment when I was talking, but maybe I didn't touch it. At the professional places, along with ethics, your personal behavior with your working colleagues. देखो आज एक बड़ा मी टू मूवमेंट चल रहा है। मी टू मूवमेंट कितना बड़ा चल रहा है कि लोग का पर्सनल कैरेक्टर बिहेवियर एट योर वर्क प्लेसेस आर समटाइम्स सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है साइकोलॉजी और बिहेवियर में कि बिकॉज यू आर वर्किंग टुगेदर दैट डजंट मीन दैट यू फुल्ली ओन दैट पर्सन। Ultimately, it comes to ethics, ना? Ethics, definitely. Yeah. Values, ethics, behaviors, ये सभी की बातें हैं। और if and every second day, every third day, you see a head rolling because of this. A head rolls because of this. नहीं पहले क्या था ना, because it was not in public kind of a thing knowledge. It was being kept secret, and I think people used to be a lot of fearful of other kind of a thing, social kind of impacts. Now people are becoming bolder, and they have got the platforms, and the whole ecosystem is supporting them. Yeah, and it is in one way good. It is in one way good that when the ecosystem actually expresses this, and when it supports the candidate. Absolutely. When the candidate or that victim or whosoever is well supported by the ecosystem, that support can prove as a deterrent to other behaviors also. एक रुकावट डाल सकती है कि कोई और व्यक्ति इस प्रकार का बिहेवियर ना करे। पर उसका एक साइड इफेक्ट है, मतलब there is misuse of also. There is a misuse. मैंने बोला ना, everything is double edged. Legal systemly, I think also I think is one sided. Everything is double edged. मैं कई बार ये कहता हूँ कि अभी तो मी टू है, लेकिन भविष्य में C2 आएगा। कि भाई आपने कोई नजर से देखा तो कोई कंप्लेन करेगा कि ये नजर ठीक नहीं थी, तो ये लोग सॉफ्टवेयर वाले उसके 20-25 सॉफ्टवेयर उस नजर पे सीसीटीवी में लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये रेड लाइन है, ये नजर ठीक नहीं थी। तो मी टू में से C2 भी है। टेक्नोलॉजी वहां तक जाने वाली है, टेक्नोलॉजी तो वहां तक जाने वाली है। लेकिन इन अ वे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज गुड फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। No, of course, the quality of life is improving. I think even lifespan is increasing. Yes, definitely. Quality, of course, I think some people stress levels are going up, but that's individual stuff. But overall, if you look at, I think everything, the world is moving towards more transparent world, more ethical world, and more inclusive world. Corona ने एक चीज सिखा दिया कि भाई I'm not independent. I'm interdependent. I am dependent upon my staff, my people, my even family members, my drivers. Everything is really, I think, whole ecosystem is interconnected.
I need to Yeah. respect them also. कोविड ने तो बहुत अच्छी बातें सिखाई थी। इंटरडिपेंडेंस तो सिखाया ना सभी को, इंटरडिपेंडेंस कि फॉर माय एग्जिस्टेंस एंड फॉर माय ग्रोथ आई एम डिपेंडेंट अपॉन पीपल, अपॉन सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस। और सबसे बड़ी बात ये सिखा दी कोविड-19 ने कि फैमिली इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। द Yep. प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज फैमिली। Absolutely. और ये टेक्नोलॉजी की वजह से कोविड में लोग घर पे थे लॉकडाउन में, तो अपने रिलेटिव्स के साथ प्रदेश में और अदर स्टेट्स में अच्छी तरह से रोज बात कर सकते थे। बुजुर्ग, बूढ़े जो घर में थे वो लोग अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बात कर सकते थे अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। So that is the technology actually sustained them in this time. So लेकिन मैंने कहा ना, जैसे प्रमुख साईं महाराज ने कहा कि विवेक बुद्धि है तो टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद रूप है। और विवेक अगर हम चूक गए, डिस्क्रिमिनेशन चूक गए, तो इट इज अ कर्स, इट कैन किल यू। चलो, बहुत अच्छी बातें हुई, अच्छी शेयरिंग हुई। एक फीडबैक आपको देना था। हमारे ऑफिस में जब आए थे ना, हाँ जी, some of the ladies members, they really I think were unhappy कि why we are being really I think pushed to the back side of the hall rather than also equally participating in the participation. These are question of principles. I think so. You cannot do anything, but I think somewhere really I think our traditional systems and values are really I think where really I think they are following. वो एक धर्म मर्यादा होती है, और देखो वो सभी को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आप भी ये मर्यादा एक अलग ढंग से यू आर फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल, when I normally say that, for example, 5 ladies are standing in front of you. One is your wife, one is your daughter, one is your sister, one is your mother, and one is your neighbor. Now, if I say, can you physically, mentally, and emotionally behave the same with all the 5? Yeah, you can't. You can't, because one lady is your mother, second is your sister, third is your wife, fourth is your daughter, and fifth is your neighbor. So even when you are in Grahasth ashram, your behavior with the other gender differs according to your relationship. That is what we call maryada. In one line, you can put your hand on your wife's shoulder, but you cannot put your hand on your neighbor's wife's shoulder, even when you are 20 years of neighborhood. Yep. तो वो स्पर्श की मर्यादा आपकी आ जाती है, तो हमारी तो देखने की मर्यादा आ जाती है, क्योंकि हम त्यागी हैं। आप गृहस्थ आश्रम में तो भी स्पर्श की मर्यादा आती है, तो हमारे तो और ज्यादा मर्यादा आ जाती है। तो एक मर्यादा की बात है कि वी डोंट कंसीडर देम एज सेकंड क्लास सिटीजंस, दे आर इक्वल गुड पार्टिसिपेंट्स। देखो आज वेबिनार में सभी कोई थे, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक शब्द प्रयोग करना चाहूंगा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में मर्यादा आ जाती है। जैसे आपको डायरेक्ट स्पर्श में मर्यादा आ जाती है, डायरेक्ट प्रेजेंस में आपका कोई परम मित्र हो, 30 साल से आपका मित्र हो, बचपन का मित्र हो, लेकिन उसके घर आप गए और आप सरप्राइज विजिट की, और भाभी आपको बोलेंगे कि नहीं वो तो घर पे नहीं है, और आप बैठे तो भी आपको थोड़ी दिक्कत महसूस करेंगे कि चलो घर में कोई पुरुष नहीं है, सिर्फ विमेन फॉल्क हैं, तो आप ये कहेंगे चलो नहीं यार, ऐसे में तो यहाँ से गुजरा था तो आ गए अंदर, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, तो आप वहां बैठने का पसंद नहीं करेंगे। यस और नो? इवन इफ इट्स अ 30 year of family friendship. तो एक मर्यादा है, एक सामाजिक मर्यादा है। This is the way we have been brought up, ना? हाँ, वो एक सामाजिक मर्यादा है, तो ये एक आध्यात्मिक मर्यादा है। चलिए, चलो फाइन सर, आप लोग ऐसे डिस्कस करते रहेंगे तो हमें बहुत फायदा हो रहा था। थैंक्स रवि, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू, really appreciate my regards to Sarika also. I hope she's there. Yes, Ravi, yes, thank you very much, and Ravi, all prayers for you. Take care, and I take your leave. Okay. Thank you, Swamiji. Thank you, Motivator. Thank you so much. Thank you.